آزادی کی جنگ جاری رہنے والی 22 گھنٹے کے بعد اختتام پذیر ہو گئی۔ غداروں کی فہرست میں ایک نئے غدار کا اضافہ ہوا جس نے اپنے لیے کئی 100 مربع میل زمین کو الاٹ کروایا اور نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ اس طریقے سے انگریزوں کے قدم بڑھنے لگے اور انگریزوں کا سکہ جمنے لگا اور 1740 تک پہنچتے پہنچتے انگریز ہندوستان کے کئی صوبے پر قابض ہو چکا تھا۔ اور اسی اثنا میں ایک مرد مجاہد جس کا نام ہم نے لیا، ٹیپو سلطان شہید علی رحمہ، فتح علی خان، حیدر علی کے بیٹے جو میسور میں رہتے تھے اور میسور کا علاقہ جن کے زیر نگی تھا اور جن کے قبضے میں تھا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب انگریز ہندوستان کو ہڑپ کرنے والا ہے۔ بقول مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے جس شخص نے منظم طور پہ انگریزوں سے جہاد کیا ہے، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے جس شخص نے انگریزوں کے ڈرانے کو بھاپا ہے اور جس کی اولو العزمی اور جس کی پامردی اور جس کے تدبر نے اور جس کی فکر نے اور جس کی دور اندیشی نے اس چیز کو پرکھا کہ ہندوستان کے اندر اب انگریز اپنا قدم جما لے گا، وہ سب سے پہلا شیر میسور ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ ہے۔ 1740 کے اندر انگریزوں کا بہت سے علاقوں پر قبضہ ہو چکا ہے اور 1601 میں منظم طور پہ انگریز یہاں پہ آیا ہے۔ 1701 میں کچھ علاقوں پر قبضہ ہوا ہے، 1707 میں 1717 میں وہ کچھ اور آگے تک بڑھے ہیں اور 1740 میں پہنچتے پہنچتے ان کی حکومت اور مستحکم اور مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی اثنا میں 1702 کے اندر دہلی کے اندر شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کو ہم اور آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ 1601 میں انگریز آ رہا ہے، 1701 میں انگریزوں کا کچھ علاقے پر قبضہ ہو رہا ہے، 1717 میں ان کی حکومت اور تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، 1740 میں مختلف علاقے ان کے اور زیر نگی آ رہے ہیں اور 1702 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس ہندوستان کے اندر دلی میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ وہ ہیں جنہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ وہ ہیں جنہوں نے شیعوں کے خلاف جہاد کیا ہے اور ان کو ہندوستان کے اندر کیا ان کی حیثیت ہے بتانے کی کوشش کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ وہ ہیں جنہوں نے شیخ ابو طاہر مدنی سے علم حدیث حاصل کر کے ہندوستان میں باضابطہ منظم طور پر درس حدیث شروع کیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اس سے پہلے حدیث نہیں پڑھائی جاتی تھی، جملے پہ غور کریے، میں نے کیا کہا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ وہ شخص ہیں جنہوں نے منظم طور پہ اور باقاعدہ درس حدیث دینا شروع کیا ہے اور ہندوستان کے اندر حدیث کو انہوں نے فروغ دیا ہے اور ہندوستان کے اندر حدیث کو انہوں نے رواج بخشا ہے اور ہندوستان کے اندر شیعت کے خلاف انہوں نے جہاد کیا ہے، ہندوستان کے اندر سکھوں سے انہوں نے لوہا لیا ہے اور اپنا لوہا منوایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے اور یہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہے جنہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی ہے، جو کتاب ہمیں اور آپ کو شاید آج پتہ بھی نہ ہو لیکن ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگان دین جس کا مطالعہ اپنے اوپر لازم سمجھا کرتے تھے، جس کے اندر انہوں نے پہلی مرتبہ احکام الہیہ کے اسرار اور رموز کو پیش کیا۔ شاہ ولی اللہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کا نظام معیشت پیش کیا، نظام معاش پیش کیا۔ شاہ ولی اللہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث سے معیشت کے نظام کو، اصول کو اور اس کو اخذ کر کے اور نکال کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، احادیث کیا کہہ رہی ہیں، اس میں ہمارے لیے دنیا میں جینے کا اور اس کو سنوارنے کا اور اس کو سجانے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی ایک گزرگاہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے، اس پل کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا ہماری آخرت کا ایک پل ہے، ایک زینہ ہے، ایک سیڑھی ہے، اور اگر پل جرجر ہوگا، پل صحیح نہیں ہوگا تو آخرت میں پہنچنا بھی دشوار ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اس نظام کو پیش کیا جسے کئی سال بعد انگریزوں نے شرح کر کے
मार्केनन और लेनन ने इसे चुरा करके अपनी किताबों में दर्ज किया और ये साबित करने की कोशिश की और नाकाम साई की ये हमारा निजाम है और हमने बनाया है और हमने लिखा है, जबकि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने उसे तरतीब दिया था। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा 1762 में आपकी वफात हो जाती है, लेकिन उससे पहले 1739 में आपके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसे हम और आप शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा के नाम से जानते हैं। शाह वलीउल्लाह वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरान का तर्जमा फारसी में किया। उससे पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुरान का किसी भी जुबान में, किसी भी लैंग्वेज में कोई तर्जमा नहीं था। शाह वलीउल्लाह हिंदुस्तान के वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरान का फारसी में तर्जमा किया है। और शाह वलीउल्लाह के ये बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरान की तफसीर फारसी में लिखी, जिसे तफसीर अजीबी के नाम से जानते हैं। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा के तीसरे बेटे शाह अब्दुल कादिर और दूसरे बेटे शाह अब्दुल कादिर और तीसरे बेटे शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा, ये दोनों ऐसे हैं जिन्होंने इस कुरान का उर्दू में तर्जमा किया है। इसीलिए जो तर्जमा इन तर्जमों से मिलता है, जो तर्जमा इन तर्जमों से मेल खाता है और जो तर्जमा इसके करीब होता है वही काबिल कबूल होता है, और जो तर्जमा इससे दूर होता है वो तर्जमा कबूल नहीं किया जाता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा की वफात हो रही है 1762 में और 1739 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा पैदा हो रहे हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा जब पैदा हुए और उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की और दर्स हदीस देना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी निगाहें हिंदुस्तान पे पड़नी शुरू हुई, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज अपना सिक्का गाड़ता चला जा रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज अपना पंजा गाड़ता चला जा रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज अपना तसल्लुत जमाता चला जा रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज अपना कब्जा जमाता चला जा रहा है। नतीजा ये निकला कि 1772 के अंदर सबसे पहले जिसने हिंदुस्तान के अंदर आजादी का बिगुल बजाया है, जिसने हिंदुस्तान के अंदर आजादी का सूर फूका है, वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा है। और इन्हीं के साथ साथ या इन्हीं के आसपास अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमा है, जिन्होंने ये देखा था, जो खैराबाद के रहने वाले थे, जिन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान में अंग्रेज उपद्रव मचाए हुए, जिन्होंने ये देखा कि मुगलिया सल्तनत जवाल पजीर होती चली जा रही है, जिन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का सफाया किया जा रहा है, जिन्होंने ये देखा कि यहाँ के मदारिस और मसाजिद को खत्म किया जा रहा है, जिन्होंने ये देखा कि यहाँ हमारी जो मेन शनाख्त है यानी ये मदारिस और मकातिब, उसके ऊपर बार बार बिल्डोजर चलाया जा रहा है और उसे तहस नहस करके रख दिया जा रहा है। अल्लामा फजल हक खैराबादी दिल्ली की जामा मस्जिद में गए, वहाँ नमाज के बाद खड़े हुए और खड़े होकर के उलमा के बीच उन्होंने तकरीर की और तकरीर करने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे रुके हुए मौलाना लोगों से मैं ये इस्तिफ्ता कर रहा हूँ, क्या आप जिहाद फर्ज हो चुका है कि नहीं हो चुका है, क्या अंग्रेजों को अब यहाँ से निकालना जरूरी है कि नहीं है। सभी उलमा ने गौर करने के बाद उस इस्तिफ्ता पे जवाब लिखा कि अब जिहाद फर्ज हो चुका है। नतीजा ये निकला कि दिल्ली के अंदर आजादी का शोर फूंक दिया अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमा ने, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जब उन्हें कोर्ट में हाजिर किया गया और सजा की बात चली तो उनके खिलाफ जो लोग गवाही देने आते थे क्या हमारे उलमा थे और क्या उनका रोब दबदबा था। जो गवाही देने आया था वो अल्लामा फजल हक खैराबादी के हैबत की वजह से, उनके रोब साफ की वजह से, उनके असर की वजह से ये नहीं कह पा रहा था कि फतवा इन्हीं का है, ये नहीं कह पा रहा था कि फतवा इसी शख्स ने दिया है, ये नहीं कह पा रहा था कि फतवा इसी ने मुरतब किया है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने खुद कहा कि फतवा हम ही ने मुरतब किया है और हम ही ने फतवा लिया था और हम ही ने फतवा दिया था और ये फतवा हमारा है। और हम आज भी कहते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर काबिज की हैसियत से हैं और इनके खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने अल्लामा फजल हक खैराबादी
हैदराबादी को सजा सुनाई और खेल की काल कोठरियों में इन्हें ढकेला गया और नतीजा ये निकला कि अल्लामा फजल हक हैदराबादी की मौत थी किसी हालत में, खेल की हालत में हुई और इन्हें फांसी की फिर सजा सुना करके फांसी पे लटका दिया गया है। 1961 के अंदर तारीख उठा करके देख लीजिएगा, अल्लामा फजल हक हैदराबादी की ये मुख्तसर सी तारीख। अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, हर सिरे को पकड़ना पड़ेगा, तब तारीख की तरफ से जहन रहेगा और काम बनेगा। 1772 में जिसने आजादी का सुर फूका है वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी है। जब इन्होंने आजादी का सुर फूका तो टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा जो अपने निगाहों से ये खुराफात देख रहे थे और जो देख रहे थे कि अंग्रेज अब करता चला आ रहा है और जो ये देख रहे थे कि अंग्रेज अब साबित होता चला जा रहा है और जो ये देख रहे थे कि अंग्रेज अब हमारे इलाके को हड़प करता चला जा रहा है और यही नहीं मैसूर के बाद इलाके पे खुजवी तौर पे उसने कब्जा कर लिया है, तो इस मर्द मुजाहिद ने अपने लोगों में ऐलान कर दिया अंग्रेजों से जंग लड़ने का। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा इसने भी जारी किया कि अब जिहाद फर्ज हो चुका है, उलमा जिहाद को अब फर्ज करार दे रहे हैं, इसलिए हमें भी मैदान में अब कूदना पड़ेगा। इसने अपने रजाकारों को तरबियत दी और अपने लोगों को तरबियत दी और उसके बाद फिर मैदान कारजार पे इसने गर्म किया है। 1782 के अंदर पहली जंग टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा ने लड़ी है और अंग्रेजों से वो मुकाबला किया कि अंग्रेजों को लाखों चला चबवा दिया और नतीजा ये निकला कि अंग्रेज पीछे हटने पर मजबूर हुए। 1786 में फिर अंग्रेजों ने हमला किया और फिर टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा ने अंग्रेजों को खदेड़ करके भगाया और फिर 1784 के अंदर 1792 के अंदर अंग्रेजों ने सेवारा हमला किया। इसमें अपनों की गद्दारी की वजह से और कुछ नाकिबत लोगों की नाकिबत अंदेशी की वजह से अंग्रेज काबिज हो गए और कुछ हिस्से को उन्होंने ले लिया और यही नहीं टीपू को 3 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करना पड़ा, अपने 2 लड़कों को यरगमान बनवाना पड़ा और कुछ इलाका भी उनके हवाले करना पड़ा। 1792 की ये रुदाल है जब तीसरी जंग अंग्रेज से लड़ी है। मरंजा कदम के इलाके पे चौथी मरतबा 1799 में 1799 में टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा फिर आए हैं। टीपू वो नहीं है जो हम और आप अखबारों में देखते हैं, टीपू वो नहीं है जो हम और आप रिसालों में देखते हैं, टीपू वो नहीं है जो हम और आप कापी के ऊपर देखते हैं जिसके ऊपर बड़ी बड़ी मूंछें हैं और चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं है और एक अजीब अंदाज में और एक लिबास में उसे पेश किया जाता है। टीपू वो नहीं है, टीपू वो है जिसे लिखा है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात के अंदर कि टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा सब जिंदाधार इंसान थे, तहज्जुद के पाबंद थे। टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा हमेशा सुन्नत की दाढ़ी रखे हुए थे, कभी उन्होंने दाढ़ी पे उस्तरा नहीं फिरा और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आज तक किसी ने उनकी तस्वीर पे ये आवाज नहीं उठाई कि उनकी ये तस्वीर ये ऐसी क्यों करचाई की जा रही है। ये एक सिलो पॉइजन है, ये एक फ्लूइड पॉइजन है, ये एक मीठा जहर है जो हमें और आपको दिया जाता है, ये एक मीठा जहर है जो हमारे और आपके जहनों में खोला जाता है, ये एक मीठा जहर है जो हमारे अंदर दाखिल किया जाता है, ये एक सिलो पॉइजन है, ये एक ऐसा खामोश जहर है जो हमारे दिलो दिमाग में बिठाया जाता है कि तुम्हारा कायद ऐसा था, तुम्हारा रहनुमा ऐसा था, तुम्हारा लीडर ऐसा था। हमारा लीडर ऐसा नहीं था। और मकतूबात में शेख हुसैन मदनी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा तहज्जुद का पाबंद था, टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा नमाज पंजवक्ता का पाबंद था, टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा ने कभी दाढ़ी नहीं मुलाई है, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के लिए हमेशा कमर बस्ता रहे और यही नहीं बल्कि तुर्कों से राब्ता कायम किया और इस बात की भरपूर उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह यहाँ से अंग्रेजों को निकाल बाहर किया जाए। टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा वो इंसान है जिन्होंने अंग्रेजों से आखिरी मार्का किया जबकि मीर सादिक ने आपके साथ गद्दारी की। और आप अगर वहाँ जाएंगे टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा का मैसूर देखने के लिए, इधर उनका महल है जो अब नाम का रह गया है, खंडर में तब्दील कर दिया गया है, कुछ घास और पौधे उसमें लगाए गए हैं, हुकूमत सही
मुसलमानों ने उसकी निगरानी नहीं करती, क्योंकि हुकूमत की निगाह में वो मुसलमानों का लीडर है, वो मुसलमानों का कमांडर है, वो मुसलमानों का कायद है, वो मुसलमानों का कायद आजम है। इसलिए उसकी तारीख को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। इसलिए उसके बारे में ऐसी तस्वीर कसी की जा रही है कि हम और आप देख करके भी ये कहने लगे कि हमारा कायद तो ऐसा नहीं हो सकता, हमारा लीडर तो ऐसा नहीं हो सकता है। टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा के उस पूरे महल को तकरीबन अब खंडर में तब्दील कर दिया गया है और महल के बीच से एक रास्ता गुजरता है। इस रास्ते को वहीं पार करने के बाद, जो कि 10 फीट के फर्क से होगा, टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा जहाँ पे शहीद होकर के गिरे थे, वहाँ पे स्याह पत्थर लगाए गए हैं एक निशानी के तौर पे कि यहाँ